Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you are doing great and your studies are going very well. My name is Sonika Seni. So this is another video in our UPSC EPFO, that is EOAO APFC series. We have made a number of videos regarding that and they're really important because I have made those videos based on research, and they're good videos regarding like आपको if you're starting the preparation then you have to focus on 4 subjects जहाँ से 60-65 questions आते हैं, not that कि बाकी subjects नहीं करने हैं, because their cost benefit ratio is very high, because they're static in nature, उनमें they're stable, like सबसे ज़्यादा questions वहाँ आते हैं. Then there is a video regarding that how non-UPSC aspirants have more edge, right, and how UPSC aspirants they have the base, then how also they have an edge, right. Then there's a video regarding the subject strategy like accountancy. Today we are again discussing about a specific subject strategy, that is labor laws, social security and industrial relations. And further we will be bringing subject strategy videos for the subjects that are different in EPFO, for example accountancy, auditing, insurance and these kind of subjects. Number 3, we will bring the PYQ analysis also for the year 2025 specifically and 2023 also. We will discuss that what are the type of the questions that have been asked. So before I start again, मुझे कुछ चीज़ें बोलनी हैं कि देखो YouTube पे I've also prepared for EPFO last year and there are videos regarding it कि कैसे prepare करना है और कैसे. So I will try my best on the basis of what I know, on the basis of what I researched. ठीक है कि सबसे एक बेहतरीन चीज़ें उसमें से आप क्या गैदर कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, किस तरीके से PYQs को पढ़ के हमें अपनी स्ट्रैटेजी को गेन करना है. ठीक है, चलिए. So let's proceed about the industrial relations, social security and labor laws. तो first of all ये मैंने previous video में discuss किया है, but still I want to discuss it again. The thing is that how many number of questions, ठीक है, comes from this section. These 3 sections are there. How many number of questions जो यहाँ से आते हैं? There are about 16 to 20 questions, right? You know that there are 120 questions in total. There are about 16 to 20 questions, and when each question is about 2.5 marks, it means about 40 to 50 की range में आपके यहाँ पे क्या बनते हैं, मार्क्स बनते हैं. दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑब्वियसली EPFO रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, दैट दे आर स्टैटिक इन नेचर. ठीक है, एक क्वेश्चन था तो जो थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लिया था, दे आर स्टैटिक इन नेचर. द सेकेंड बेस्ट थिंग इज दैट देर इज स्टेबिलिटी इन, देर इज स्टेबिलिटी. अगर आज 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दे कैन बी 18, दे कैन बी 20, दे कैन नॉट बी लेस देन 15. For example, if you go by other subjects, for example computer, 10 questions हैं तो वो 5-6 पे पहुंच गए हैं. For example economics, 8-10 questions थे तो वो 4-5 आ रहे हैं. But there's a stability in this number of questions. ठीक है, चलिए. And they're very interesting also. If you do not have the background also, they're very interesting. मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे ये चीज़ पता है. चलिए. So सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, राइट, पहले मैं आपको बता दूँ ये 3 चीज़ें. इंडस्ट्रियल रिलेशंस अलग चीज़ होती है. सोशल सिक्योरिटी जिसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ डीलिंग्स होती हैं. ठीक है, फिर आता है आपके लेबर लॉज. वी विल बाइसेक्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड बाइफरकेट. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले आप देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है, दिस इज वन टॉपिक. अब दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल रीड, राइट, दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल रीड इन दिस. ठीक है, अब देखो ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कि भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है व्हाट इज दैट, राइट, यू शैल बी अवेयर अबाउट इट. देन इंडियन लेबर फोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एवोल्यूशन एंड थ्योरीज. दैट मीन्स व्हेन दिस concept came into being, right, and what are the theories related to it, what are trade unions, right, usse related theories, right, collective bargaining, that means trade unions that come together and they bargain, right, जो भी उनको चीजें करनी होती है. then industrial discipline, grievance procedures क्या होता है, labor welfare क्या होता है, industrial conflicts and disputes. we will basically read, मैं आपको बताती हूँ इस चीज के अंदर there are lesser facts, right, कोई ज्यादा facts नहीं है. ठीक है, there are what basics. ये जो आप ये जो पढ़ोगे इसके अंदर क्या है, बेसिक्स है. इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, राइट, कॉन्सेप्ट्स है. इसमें क्या है, थियरीज है, राइट. फॉर एग्जांपल व्हाट आर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस रिगार्डिंग दैट. ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू bring workers in the management. For example, there can be many kind of management. It can be authoritative, it can be paternalistic, then it can be where workers participation is also there, where you take their what votings,
राइट, या आप उनके भी सुनते हो. देन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, दैट मीन्स हाउ दिस सेटलमेंट्स विल बी डन, राइट. देन आर्बिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, लाइक लेवल ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या होती है. देन इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड वेजेस. अभी देखो ये सारा आपका क्या है, वेजेस, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, दीज आर द की वर्ड्स दैट इज देयर इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. बट मैम ऑब्वियसली हर एक टॉपिक का क्या होगा, सब टॉपिक्स होगा, इन सब इंडेक्सेस होंगे विच वी विल डील इन आवर सिलेबस. नाउ आपके लिए 2 एग्जांपल्स लेके आई हूं, because there will be another video where we will try to decode with the help of our PYQs. चलिए अब आपके लिए इसमें क्या है, ठीक है. बिफोर आई प्रोसीड, चलो पहले सिलेबस ही डिस्कस करते हैं. सो सपोज if I take one topic that is industrial conflict and disputes, so what all will be there in that, right? What all will be there in that? So meaning and definitions, what is an industrial conflict and how it is different with an industrial dispute. आपको पता होगा that generally हम ये सोचते हैं कि जो industrial dispute होता है, right, that is between workers, right, and management. But if you see and read it, you will find that industrial dispute also includes the disputes between worker and worker, and the dispute between management and management. Management and management means between two industries, workers and management in the same industry, right? So all of that we have to read in this. Causes of industrial disputes, like what can be the various causes of industrial disputes, why is it happening, right? There can be, these are the causes, okay? Economic, managerial, political causes, psychological causes, that means they are not motivated, they are not happy, maybe they are not happy with their wages, right? Then what is the difference between strike, lockout and ghirav? Picketing kya hota hai? Go slow, it's a type of thing, right? That it's a kind of a strike where you work in the organization, right? You are there in the organization, but you are not producing the number of or you can say you're not doing actual work which shall be done. Let's say you're making, your average unit is like 10 units, but you're making 2 जानबूझ के, right? That means it is a type of what? Strike. तो ये क्या है, different types of strikes है जो आप पढ़ते हैं. Then impact of industrial disputes, what do you mean by workers, who all are employees and all of that. So these are the keywords in this particular what index. ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्पल में लेके आई हूँ कि अच्छा ऐसे इस चीज को पढ़ना है. इसको हम सेपरेटली फिर डील करेंगे, ठीक है, हर एक चीज का हम लेके आएंगे कि देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है. फिर फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एवोल्यूशन एंड थियरीज, जो हमने सबसे पहले देखा था. व्हाट इज लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था, कॉलोनियल इंडिया में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आए, ठीक है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, कौन कौन एक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स. ट्रेड यूनियंस क्या होती है, राइट? एक डेफिनेशन होती है प्रॉपर ट्रेड यूनियंस की, दैट इतने वर्कर्स हैं of a particular factory or a particular manufacturing industry, right? If they decide to make a union, that how many workers shall be there, right? फिर उसके बाद theories like unitary theory, Marxist theory, ki believe what, how do they believe, ki what are trade unions, right? Why it is important, right? Then these are the approaches like systems theory, Oxford theory, human relations approach. Sometimes human relations approach is followed in making what, the industrial relations, that these are also human. Sometimes systems approach is followed, that means we consider them as machines, right? Whom? To the laborers, right? Then Ghanaian approach, contemporary issues, and what is gig economy. So these are the sub indexes of industrial evolution and theories. I believe that हमें इसका एक सेपरेट वीडियो ऑब्वियसली बनाना चाहिए. एक वीडियो में आप सब कुछ नहीं बता सकते हैं. अभी आई विल लेट यू नो, राइट, कि सपोज आपने ये पढ़ लिया, हम क्या डील कर रहे हैं, हम वी आर डीलिंग विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वी हैव रेड द ब्रॉडर सिलेबस ऑन टू इट. देन हमने 2 टॉपिक्स को उठा के उसके सब टॉपिक्स करें. अब दिस, आई होप दिस इज विजिबल. अब मैं आपको ये एक रिवील करना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला जो सेक्शन है वहां से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. दैट मीन्स व्हेन वी आर रीडिंग दिस थियरीज, राइट, व्हेन वी आर रीडिंग विद थियरीज, इफ यू विल सी द 2025, इफ यू विल सी 2025 PYQ एनालिसिस आप करोगे, राइट, तो उसमें यू विल नोटिस दैट देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू industrial relations. There is no direct question, right? So क्या है indirect question है? What do you mean by indirect question, ma'am? See, when we are talking about industry, we are talking about what? Industrial disputes, correct? When we are talking about industrial relations, we are talking about what? Trade unions, right? And we what? हमारे पास क्या है? Industrial Disputes Act है. We have Trade Union Act also, which we read in where? We read in what? Labor codes. हम इनको कहाँ पढ़ते हैं? Labor codes में पढ़ते हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स जब हम लेबर लॉज पढ़ेंगे, लेबर कोड्स पढ़ेंगे, सो वो यहाँ पर है. और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं. सो मैम वाई आर वी रीडिंग इट? वी आर रीडिंग इट सो एज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द सिलेबस. अगर एक बार नहीं आया है दैट डजंट मीन वो नहीं आएगा. हो सकता है 2 क्वेश्चंस आ जाए रिगार्डिंग लेट्स से द अप्रोचेस. आपसे पूछ ली जाए कि ये चीज़ है, प्लीज टेल
which approach is discussed. दूसरा हम इसलिए पढ़ रहे हैं because it is important to understand the further laws, further codes. ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ट्रेड यूनियंस की डेफिनेशन क्या होती है, राइट, हु ऑल आर कैन बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर का मतलब बहुत सारी चीजें होती है, नॉट ए नॉर्मल बैलेंस वी यूज की वजह जिसने आपको हायर किया है, राइट. Sometimes in the absence of employer, manager can also be considered a part. ठीक है, with respect to the what वर्कर्स जब हम उसको डील करते हैं. ठीक है, तो आई मीन टू से दैट दीज आर द कंसेप्ट्स व्हिच यू नीड टू डू इट. अब क्या इसको बाय हार्ट रटना है, एक बार पढ़ो, 2 बार रिवाइज करो, देन यू आर गुड टू गो. ऐसा नहीं है कि आपको उसको बाय हार्ट, यू हैव टू क्रैम इट, बट दैट यू नीड फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लुकआउट, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. ठीक है, बट all I'm saying that in these are the indirect questions which you can, these questions can come under your label also, but I put it here also. For example, what, which one of the following industries is not a, एक second, public utility सर्विस अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. सो ये जो हम एक्ट है हम लेबर कोड्स में पढ़ेंगे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक. फर्स्ट शेड्यूल आप जब आप पढ़ोगे उसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या पब्लिक यूटिलिटी जो है वो मानी जाती है. अब पब्लिक यूटिलिटी की अलग से डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, बिकॉज दे हैव सर्टेन कंडीशंस कि कब आप स्ट्राइक्स पे जा सकते हो, कब आप नहीं जा सकते, कितने पीरियड का आपको नोटिस देना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो सी दिस क्वेश्चन नाउ. द मैंडेट ऑफ गिविंग अ नोटिस ऑफ 6 weeks as provided under the Industrial Disputes Act. That means you have to mandatory give the notice for the 6 weeks. ठीक है, are applicable to which of the following categories of the people. That means is it workmen employed in public utility. अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको स्ट्राइक देने से पहले जाना पड़ेगा. क्या employers carrying out public utility service before declaring lockout. ठीक है, workmen employed in any service before going for a strike. तो दैट आस्किंग यू कि किस किस को ये नोटिस देना इंपॉर्टेंट है. इज इट फॉर द वर्कमैन, इज इट फॉर द एम्प्लॉयर्स, और इज इट फॉर द वर्कमैन हु आर देयर इन एनी सर्विस, राइट. दैट मीन्स इज इट फॉर पब्लिक यूटिलिटी और इज इट फॉर सर्विस, एंड देन देयर आर ऑप्शंस. करेक्ट. सो दिस इज 2 क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. ठीक है, आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, इन डिटेल वी विल डिस्कस ऑल द पीवीक्यू एनालिसिस. आई एम हियर जस्ट टू रीड आउट एंड लेट यू नो कि अच्छा ऐसा कुछ आपको एक क्लैरिटी आनी चाहिए, फिर हम डिटेल में इस चीज को पीवाईक्यूज को करेंगे. चलिए, ना ये मैं आपको समझा चुकी हूं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर आई टोल्ड यू द ब्रॉडर टॉपिक्स, द सब टॉपिक्स ऑफ 2 टॉपिक्स एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. नाउ फ्रॉम दिस पीवाईक्यूज पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब 2025 का पेपर हुआ था, राइट, वैसे तो न्यू लेबर लॉज आपके आ गए थे, बट देन इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड. बट सो द क्वेश्चंस, राइट, द क्वेश्चंस दैट बिलोंग फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द ओल्ड लॉज, राइट. क्वेश्चंस जो थे वो ओल्ड लॉज से थे. बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी भी नहीं आ रही है, बिकॉज बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यूट्यूब पे, सब कुछ समझ नहीं आता, एवरीथिंग इज वेग. तो ये जो क्वेश्चंस है आपके ओल्ड से पूछे गए हैं. ठीक है, बट अभी का आएंगे, न्यू आएंगे, सिंपल सी बात है. फिर मैम हम पीवाई की एनालिसिस क्यों करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, किस रेंज में पूछे जा रहे हैं, क्या वो पूछ सकते हैं, राइट, बिकॉज द बेसिक एस्पेक्ट डजंट चेंज. चलिए, नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर syllabus in this with regard to this, that is social security codes, right. social security codes. ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, देयर वर लॉस, देयर वर 29 सन लॉस, है ना, दे वर स्कैटर्ड. क्या हुआ, उनको स्कैटर्ड, दे वर स्कैटर्ड, और बहुत लंबे लंबे होते थे, राइट. हर एक का डेफिनेशन आप पढ़ोगे, हर एक के उसमें पढ़ेंगे कि ठीक है इसका जो पेनल्टी है वो क्या होना चाहिए, हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हु इज अप्रूवल बॉडी, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे लॉज को, राइट, ऐसा नहीं कि ये लॉज हट गए हैं, इन सारे लॉज को मर्ज या कॉम्बिनेशंस करके ऐसा कुछ कर दिया कि नाउ दे आर बीइंग डिवाइडेड अंडर 4 कोड्स. नाउ दे आर बीइंग डिवाइडेड अंडर 4 कोड्स. ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि न्यू करें या ओल्ड करें. बच्चे कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, ओल्ड न्यू दोनों करना है. अरे भाई, लिसन टू मी, दोज ओल्ड लॉज हैव बीन समवेयर मर्ज्ड, आगे पीछे, in those 4 codes only. Obviously, some facts have been changed. For example, Maternity Benefit Act, women have been allowed to go into the mine. Okay? They can work in night shift, है ना? But those acts now are under those codes only with some changes. So when you're reading the new codes with those acts, why do you need to read the old? I'll tell you. See, for example, there were a different act known as Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act,
एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, राइट, दीज फोर वर देयर अलग से। अब उन चारों को मर्ज कर दिया, ठीक है, और and then they have made a separate code for it, that is Code on Wages Act. So when you will open the bare act, right, when you will open, there will be one PDF having all these aspects, obviously with some changes, obviously with the common definitions like what is appropriate government. अब मान लो मैं पहले अलग अलग पढ़ती थी, मुझे अलग अलग पढ़ना पड़ता था, what do you mean by appropriate government? Now they have given a common definitions for all. That means यही चीज आपको अलग से किसमें मिलेगी? Code on Wages में. अब for your kind information, all these, right, out of these, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, this and this is very 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 important. In fact equal remuneration act is also important. ये तीन तो बहुत ज्यादा important है, राइट, क्योंकि देखो बहुत सारे लॉज है, हर एक लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम लेटिंग यू नो. नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से, अच्छा क्वेश्चन सब बाद में देखेंगे, ये मैंने ऐड किया है फ्रॉम आर कंटेंट, जो कंटेंट मैंने बनाया है, लाइक, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि हमें पढ़ना क्या होता है. मैम आप तो बता रहे हो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ, राइट, मुझे पता है कि ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू इलेबोरेट इन अ क्लियर मैनर. व्हाई? बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज रीडिंग इट, देयर वाज लैक ऑफ क्लैरिटी कि किसमें क्या पढ़ना है, किसमें क्या नहीं पढ़ना है, एंड यूट्यूब पे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं. सो देखो, सपोज पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ये पढ़ोगे कि देखो जो वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसका भी डेफिनेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर वेज, राइट? हु सेट्स इट? सेंट्रल गवर्नमेंट और द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, right? For example, if you're paying those wages, how you are supposed to pay, whether it should be offline, whether it should be online, it should be in currency, it should be in coins. When you're paying those wages, right, when you're going to pay, ye to ho gaya how, right, how you're paying. Then when are you paying these wages, right, either weekly, either monthly, either fortnightly, that is also mentioned. When you're paying these wages, what kind of deductions can you do in this payment of wages? What kind of deductions means, let's say an employee has taken a loan from the employer, let's say a worker, so can that be a deduction? Yes, that can be a deduction because you have taken your salary as an advance. So can that be a deduction? What cannot be a deduction? What are the fines that can be done? Suppose आपकी wages काट ली गई, तो government says that क्या क्या fines आप लगा सकते हो. Government also says that if you do not take fines in an appropriate time period, then you will not be able to fetch that fine from your wage, that your employee. ठीक है, इट सेज दैट अगर आपने इतने दिनों में फाइन नहीं लिया है, देन यू डू नॉट ओ दैट फाइन. अगर आपको लेना है तो विद इन दोज डेज ही लीजिए. गवर्नमेंट ऑल्सो सेज दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ डिडक्शंस कैन बी देयर, लाइक 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते, सो एज टू इंश्योर कि एक एक वर्कर के पास जो है मिनिमम जो मैक्सिमम सैलरी हाथ में होनी चाहिए फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, फॉर इट्स ऑन एक्सपेंडिचर. सो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. सो वेरी वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट, ठीक है, सबसे छोटा यही कोड है. अब मिनिमम वेजेस में क्या पढ़ते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, विच आई हैव रिटन. पेमेंट ऑफ बोनस में यही होता है कि भाई जो बोनस होता है वो किस पे होता है, आपकी कौन सी सैलरी पे होता है, हाउ मच कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द बोनस दैट कैन बी गिवन टू द वर्कर्स, राइट, कि मैक्सिमम कितना होता है, 20% होता है, ठीक है. इट ऑल्सो टेल्स दैट कि एक कंपनी है, जैसे लेट्स से एक एस्टेब्लिशमेंट है, राइट, मैक्सिमम कितना बोनस में शेयर वो कर सकती है, कितना सरप्लस जो है बोनस के लिए डाल सकते हैं, 60 है, 60 to 67% की रेंज में होता है. ऑल ऑफ दैट फॉर अनदर काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स. सो वी रीड दैट इन दिस, राइट. अब मिनिमम वेजेस में क्या पढ़ते हैं, दैट हाउ डू यू सेट दैट मिनिमम वेजेस. पेमेंट ऑफ वेजेस में तो आपने पढ़ लिया व्हाट इज फ्लोर वेज, व्हाट इज मिनिमम वेज, बट व्हाट इज minimum wage, what does it include? So this is the formula, right, this is the formula that these are the three components, and आप कोई भी formula use कर सकते हैं. For example, basic rate, cost of living, basic rate of wages, that means ये basic rate of wages and cost of living index, और basic rate, or either you take COLA or cash value of concessions, or you can take all three. Obviously अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, but आपको एक hint देने के लिए कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है. एक ऊपर से अगर मैं ओवर दूंगी आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा अच्छा मिनिमम वेजेस पढ़ना है, अच्छा पेमेंट ऑफ वेजेस है, बट अंदर क्या पढ़ना है आपको समझ नहीं आएगा, तो दिस वीडियो का पर्पस ही नहीं रहेगा, ठीक है. चलिए, पेमेंट ऑफ बोनस के मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ सी, आई टोल्ड यू दैट पेमेंट ऑफ वेजेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2 क्वेश्चन आए थे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस कैन बी मेड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट टेल्स दैट कौन कौन से डिडक्शंस आप कर सकते हो, ठीक है. डिडक्शंस फॉर एमेनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, कि भाई मैंने तुम्हें कोई फैसिलिटीज दी है, कैन यू डिडक्ट दैट प्राइस,
डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, डिडक्शंस फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट? सो ऑल है ना, ऑल कर सकते हैं, ओनली आपको यहाँ पे क्या होता है, उसका कंसेंट लेना होता है कि ओके। अब which of the following in reference to the payment of consider the following and which is correct. Wages may be paid in current coins. Wage period can be fixed for weekly payment. Wages are to be paid before the expiry of the 7th day after the last day of the wage period in establishments employing more than 1,000 persons. So there's a condition that if the establishment has less than 1,000 persons or more than 1,000 persons, then it should be within what, right? Let's say आज liable हो आप 1 में, तो आप 7th के पहले आपको पे करना है या बाद में, all of that. So my point is, ठीक है, my point is that this is how the questions are being asked, right? तो अगर आप बहुत अच्छे से इसको कर लेते हैं, you will be able to answer it in a very good manner and they're very scoring. These topics are very scoring. चलिए, ठीक है. Yes. Now second code. We have 4 codes I told you. Now this is our second code. That is Industrial Relations Code 2020. And it has merged 3 laws. जो अभी हमने पीछे क्वेश्चंस दिए थे, देखे थे, that was regarding trade unions, that was regarding Industrial Disputes Act. तो दो तो यही हो गए, trade unions and Industrial Disputes Act, and the second one is Industrial Employment Standing Orders, right? Which means जब when a worker goes for a job, उसको एक the standing orders दिए जाते हैं. That means what kind of things which he has to or she has to follow, right? और वो आपके premises में भी government also says that you have to fix that in premises. That means you have to tell the working conditions and all of that. इसमें ये होता है trade unions, I've already told you, है ना, कि बैंक के अंदर कितने members हो सकते हैं, ठीक है. कुछ चीज़ें होती है like let's say they want to go on a strike, then कितने डेज का उन्हें नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देने के कितने दिन बाद दे कैन स्टार्ट अ स्ट्राइक. देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, हु इज अ आर्बिट्रेटर, हु इज अ कॉन्सिलेटर, हाउ दिस डिस्प्यूट्स विल बी सेटल इन, ऑल ऑफ दैट. तो ये भी इजी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीन ही कॉर्ड, इस कॉर्ड में 3 ही है, तो दी ऑल आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, है ना, इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पार्ट ऑफ इट दिस ओनली. Which one of the following is not a right provided to a registered trade union? हाँ, तो इसमें registration of trade unions के बारे में बातें भी होती हैं. अगर कोई trade union let's say they don't want to continue it, then उसके बारे में भी बातें होती हैं. All of that, who can become a member or not, all of that is not a right that is provided under the Chapter 3 of Trade Unions Act. It says that constitution of a separate fund for a political purposes. Giving membership to a person is 17 years. That means it also tells that what can be the age. Committing a tortious act in contemplation of a trade dispute by an agent of the trade union without the knowledge of the executive, making changes in the employment contract through an act done in the contemplation of a trade dispute. जब आप trade unions पढ़ते हैं, एक separate provisions आते हैं कि क्या आप नहीं कर सकते, right? Eligible नहीं होते हैं, ठीक है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्या आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो अपने वर्कर से, ऑल ऑफ दैट. तो ये पूछ रहा है क्या नहीं, इट्स नॉट योर राइट. ठीक है, चलिए, दिस इज योर थर्ड कोड, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वेजेस वाला जो कोड है वो वेजेस की बात कर रहा है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला कोड इंडस्ट्रियल वाली बातों की बात कर रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियंस, अगर आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा है कि क्या कंडीशंस है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इफ लेट्स से दैट्स नॉट फॉलोड, दे कैन गो and make trade unions can go for a strike. Now this is regarding what? Occupational safety and health and working conditions. That means when you are in the occupation, what are the things that shall be followed by the employer for their employees. ठीक है, समझ आ रहा है. Now it has merged 13 laws, 13 existing laws को merge कर दिया है. अब देखिए, Factories Act, right? It also tells like what is a factory. ठीक है, फैक्ट्री की डेफिनेशन भी बताता है वो. ठीक है, माइंस एक्ट, व्हाट इज माइंस? कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपको पता ही होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो लेबर हायर करता है, ठीक है, एंड देन इट प्रोवाइड्स टू द किसको, मैन्युफैक्चरर को. सो यहाँ पे डेफिनेशंस, वी हैव टू सी द डेफिनेशंस दैट व्हाट, हु इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, then who is a contract laborer, right? Then interstate migrant workmen, that means suppose a worker is migrating from one state to another state, what is the right of that worker, right? Let's say allowance, let's say the compensation, आने जाने का किराया and all of that. ठीक है, now फिर ये another है, ठीक है, डॉक वर्कर्स बिल्डिंग इन अदर कंस्ट्रक्शन. व्हाई एम नॉट, अब देखो आई हैव मेड दीज 4 एक्ट्स बोल्ड बिकॉज आपको यही 4 पढ़ने हैं, ये सारे नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, यही 4 से क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट टॉप 3 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो हमें ये सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे. ठीक है, वी हैव टू डू दीज 4 एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग टू दिस, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था. आई थिंक ये क्वेश्चन गलत ऐड हुआ है.
बिकॉज एक सेकेंड, ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का है विच इज रिलेटेड टू दिस. कोई बात नहीं, हम पीछे पढ़ लेते हैं. सो this is fourth code, that is social security. As the name suggests, we are talking about what? Social security. What is a social security? जब आप अपने एम्प्लॉय को या वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म. लेट्स से आप पीएफ काट रहे हो उसका, है ना, यू आर जस्ट एक्सक्लूडिंग टेकिंग सम काइंड ऑफ दिस एंड यू आर providing it for at what, at retirement you're giving them what, gratuity. कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, then you're giving some kind of compensation, right? So these, इसमें सारे जो provisions है that is related to what, providing them security, and it has merged what, 9 laws. What are those 9 laws? Employees Compensation Act, ठीक है, Employee State Insurance Act, which means आपका इंश्योरेंस कर रही है कंपनी, then PF and Miscellaneous Provisions Act, then Maternity Benefit Act, है ना. It is a kind of social security scheme for whom? For women, right? For women. And Payment of Gratuity Act, which means at the time of retirement. अब देखो मैम, ये तो 5 laws है. What about the others? What about the other 9? See, ये जो 4 है, ठीक है, that is Welfare Fund Act, then Workers का एक Welfare Cess Act, Unorganized Workers Social Security Act, and Employment Exchanges. So I have don't like sorry. I have marked them in bold, don't be bold. So ये bold में इसलिए क्योंकि इसमें भी हमें यही acts करने हैं, बाकी के नहीं करने हैं. Why? Because these are the questions that being repeatedly asked and these are important और वही हमें करने हैं. So we don't have to do this. We have to do the bold ones. ठीक है? So yes. So क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं. एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट की यहाँ पे इन्होंने बात करी है. लॉस ऑफ वन आई विदाउट कॉम्प्लिकेशन, right? The other being normal is considered as what kind of injury? That means is it permanent or disablement? Total disablement. अब देखो क्या होता है जब आप compensation की उसमें करते हैं, then there are definitions to it. That what is temporary disablement, what is permanent disablement, और उसमें भी फिर further क्या होते हैं, bifurcations होती हैं कि आप इतने % अगर आपकी डिसेबिलिटी है, सो व्हाट वुड बी द कंपनसेशन दैट वुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है. सो इज इट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट? आपको भी पता है परमानेंट दैट मीन्स वो चीज आप फिर से रिवाइव नहीं कर सकते हैं. आई का लॉस हो गया, वो चीज फिर से रिवाइव नहीं होगी, दैट मीन्स इट इज परमानेंट. बट इज इट पार्शियल और इज इट कंप्लीट? देयर इज अ डेफिनेशंस टू इट. इज इट टेम्पररी और इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. द क्वेश्चन वाज अबाउट द ईसीए अगेन. सी, और एक बात और, यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. 5 to 6 क्वेश्चंस विटनेस करने को आपको मिलेंगे, जैसे बोनस कैलकुलेट करने बोल देंगे. जैसे एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये है, बोल रहा है that a person X aged 48 years was working in a mine where he met a fatal accident, right? He was receiving monthly wages of 12,000. An unfortunate accident happened. What is the amount that is the compensation that would be provided to the person? And वहाँ पे एक relevant factor होता है जो हमें देखना होता है. ठीक है, relevant factor की वो multiply कुछ ऐसा करना होता है, and that is why you find that what is the amount of compensation that is the to be provided. So my point is such type of calculative based questions also do come. Okay. वैसे मैंने इसका क्वेश्चन, आई थिंक मैं इसका कोई क्वेश्चन डालना भूल गई हूँ. किसका? इससे रिलेटेड. ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट या माइंस एक्ट का. ठीक है, तो वो हम अपने पीवाईक्यू एनालिसिस में देख लेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा. चलिए, now this was one of the previous act regarding child labor. Now child labor, it is a different kind of act. It was not merged in any kind of these 4. Remain separate, standalone, statute. That means any kind of act that is not merged in any kind of, but it is important जो हमें separately पढ़ना है. ठीक है, सो ये हमें सेपरेटली पढ़ना है आपको, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है. अब देखिए, अभी तक मैंने क्या किया. अभी तक वी हैव रेड अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्लस वी हैव रेड अबाउट द सोशल, सॉरी नॉट सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज. देन एक सेकेंड ना, मुझे क्लैरिटी के साथ बताने दो. देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. सो वी हैव रेड व्हाट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट? इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सिलेबस वी हैव डन इट. Further, we have divided labor laws into 4 codes. और उस 4 codes में भी हमें what क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है. We have seen the PYQs. यहाँ पे आपकी क्या होगी, theories होगी. Mostly सारी theories ही हैं. ठीक है, subjective है, काफी subjective है. ठीक है. Then I have said that in these labor 4 codes, one is regarding the industrial relations, that has industrial disputes, standing orders, and what, trade unions. So these and these two are related. Correct? यही पढ़ा हमने. ठीक है. Then we have a thing that is known as, specifically mentioned as social security, right? Now
अभी मैम देखो, जैसे हमने यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा, वहां पे देयर वाज अ कोड रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। जैसे हम यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, है ना, वी हैव अ कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो, जिसमें हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट, राइट, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, पढ़ा था कि नहीं, है ना। इट मीन्स वी हैव टू रीड द लॉज रिगार्डिंग टू इट दैट इज मेंशन इन दिस 4 codes, that is mentioned in these 4 codes। समझ में आ रहा है? So these are the मेजर थिंग्स, इसकी थियोरीज है, थियोरीज की जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ है। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी अलग से एक चीज जो वहाँ पे मेंशन है, इसका एप्लीकेशन बेस्ड चीज यहाँ है रिगार्डिंग इन द फॉर्म ऑफ दोस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो उसके अलावा क्या, उसके अलावा एक और चीज है जो इसमें आपको पढ़नी है, और वो ये है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से आए थे। अब देखो, हर देयर इनन्यूमरेबल मिनिस्ट्रीज, there are innumerable ministries, there are innumerable government schemes for students who know I take government schemes, है ना, for the regulatory bodies examinations, but we have to do selective government schemes that is related to social security, right? We have to do selective schemes that is related to what? Social security। ठीक है जी, social security to for like types of retirement schemes, like payment of gratuity से related, let's say NPS, राइट, ये आपकी क्या होगी, एक तरीके की रिटायरमेंट स्कीम होगी। देन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम्स, कैन आई से अटल पेंशन योजना, right? Can I say Shram Yogi Mandan Yojana is so important? Why? Because Shram Yogi Mandan Yojana is for labor, and we are talking about what? Social security for laborers, correct? Then social security schemes for women, right? Let's say PM Matru Vandana Yojana. It is a kind of scheme which compensates women when she is not able to work during what? Pregnancy. So it is Matru Vandana Yojana, which is a kind of scheme for this mothers, right? Ki we want to secure you that even if there's a wage compensation loss that you're not able to work. For the transgenders, right? The schemes for transgender also, for children, correct? For elderlies, let's say for Ayushman Bharat for senior citizens है आपका, that is for elderly, right? Then there is NPS scheme also, saving schemes also for elderly. Then for PWDs, for the tribals and for the labor class, for example this, right? तो हमें selective schemes करनी है इसमें। Why? Because this is an application of those codes, those laws। ठीक है, अब दिखा देती हूँ आपको इसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें से आई थिंक मैं 2 लेके आई हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो, निष्ठा इज एन इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, right? And PM Poshan covers only those school children. So यहाँ पे क्या हो रहा है? They're talking about midday meal scheme that is covering what? Children. It is saying that does it cover only school students? No, it covers lactating mothers also, pregnant women also, and kindergarten students also. This comes as a wrong statement. Whereas Nishta ये ठीक है, it is for teachers training program. तो 2 अलग-अलग schemes को merge कर दिया गया है। Second, देखो, स्माइल स्कीम, you know that it is for transgenders and beggars. So scheme that is related to transgenders, it is for transgenders and beggars, which is correct, both are correct, okay? चलिए, so ये इस तरीके से simple यहाँ पे questions आते हैं। Now, so this is to conclude all the things which we have talked about, right? This is to conclude, right? I tried my best कि मैं आपको ये bring all of the things in one video कि about all of this to bifurcate in all the syllabus and किस तरीके से चीजें अप्रोच करनी चाहिए आपको। ठीक है, now highest frequency acts, right? देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2-3 क्वेश्चन आए थे एक ही बार में। मिनिमम वेजेस एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद 2 और हमने यहाँ पे किए थे, इक्वल रेम्यूनरेशन किया था, ठीक है, और पेमेंट ऑफ बोनस किया था, बट उसमें से सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड यूनियंस एक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स जोन 3 के साथ था। ठीक है, यहाँ से कंपनसेशन से तो डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, चाइल्ड लेबर, राइट, और मैटरनिटी बेनिफिट इज इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इंपॉर्टेंट, राइट, ईपीएफ इज इंपॉर्टेंट, स्टेट इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका ये मुझे आई थिंक इसका मुझे श्योर नहीं है, सो आई एम सॉरी। ठीक है, एंड पर्सनल इंडस्ट्रियल ये भी इसका आई एम नॉट श्योर, ये तो अपना चलो इंश्योरेंस वाला हो गया। ठीक है, ये वाला आप रहने देना, यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ये यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो बट प्रायोरिटी पे ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, सेकंड प्रायोरिटी आप इसको ले सकते हो क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बतानी है आपको। ठीक है, नाउ थोड़ा स्ट्रैटेजी वीडियोस हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल पिक लेबर लॉस, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी के PYQs एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम, वी विल ट्राई टू एनालाइज इट कि कैसे क्या हमें करना है। ठीक है, क्योंकि उन PYQ से भी आपकी क्या बनती है, स्ट्रैटेजी बनती है, दैट व्हाट शैल बी रीड।
ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो वी आर मेकिंग अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम कहाँ से करना है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की तो बहुत सारी थियरीज हैं जो ऑनलाइन आपको एज एन पीडीएफ मिल जाएगी। एंड लेबर लॉज का तो देखो अभी डायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो अभी बेयर एक्ट सिंस अभी स्टार्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी जो है बेयर एक्ट्स ही आपको है, बट बेयर एक्ट जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से वन ईच इज ऑफ कुछ, कोई 56 पेजेस का है, कोई 115 पेजेस का है, कोई आई थिंक 30 पेजेस का है, वेजेस वाला सबसे छोटा है। ठीक है। सो इफ़ यू वांट दैट आपकी जो प्रिपरेशन है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट एंड इफ़ यू वांट कि दैट शैल बी ईजी, आई डोंट वांट टू रीड द बेयर एक्ट्स, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डिवोटिंग टाइम टू बेयर एक्ट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट टू अंडरस्टैंड दोज बेयर एक्ट्स, बिकॉज व्हेन आई एम रीडिंग इट माई सेल्फ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, टू decode दैट लैंग्वेज एंड टू अंडरस्टैंड what is being given, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो आई मीन टू से दैट इफ यू वांट कि आपको एक सोर्स से हर एक चीज को ईजी करके मिल जाए, राइट। सपोज अभी मैं लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन इट, so I'm not going to copy paste the bare acts as it is. I'm going to make the explanation easier for you, plus we will take the lectures also, so that आपको lectures मिलेंगे, आपको easy comprehend किए हुए notes मिलेंगे, be it industrial relations, be it social security schemes, be it all these codes, ठीक है। So if you are interested, then there's an available course in our EPFO, ठीक है, at our website. You can mail to us for any kind of queries, and we will keep bringing such kind of strategy videos, particularly subject wise. So thank you so much for this video, for watching this video, and from CGV Mentor, Sonika.